Welcome back, the students of class ninth. So, today we are again here to study the poem number 5, A Legend of the Northland. The chapter 4, the chapter 5 and the poem number 4 we need not to study. So, directly we are moving towards the poem number 5, A Legend of the Northland. A Legend of the Northland is dedicated by Saint Peter to a very selfish lady. Okay, it is a story of the Saint Peter and a very selfish lady. The legend of the a legend of the Northland is symbolizing the old lady. Sorry, the lady, an old lady who didn't give a single piece of cake to Saint Peter, and Saint Peter became very angry with her. So he cursed her. उन्होंने श्राप दे दिया था old lady को. Okay, so let's move towards the poem. Away, away in the northland, where the hours of the day are few, and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. Away, away in the northland. It is not the story of our own country. It is the story of the northland, where the hours of the day are few. That means the days are short and the nights are long. And the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. The nights are that much long in winter that the people are not able to sleep for the whole night. That means the hours of night are so many that they cannot sleep for the whole night. Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows, and the children look like bear cubs in their funny furry clothes. Where they harness, what they do? They tie the swift reindeers. They use the reindeers who run fast to their sledges when the snow fall in the northland. And the children look like bears. And those sledges, when they are tied with the reindeers makes a noise. Okay, now what the reindeers are having the bells that makes the noise, and what is about the children? And the children wear so many woolen clothes. They look so fluffy and soft that they look like the bear cubs in their funny furry means made of wool and heavy fur. Okay, in their funny furry clothes, they tell them a curious story. The parents of those kids tell them a story. I don't believe it is true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. I don't think that the story is true. The story is told by the kids, told by the parent to their kids, but I don't think the story is true. But still we learn a lesson. हमें एक सीख मिलती है इस स्टोरी से, अगर वो कथा मैं आपको बताऊंगा तो. Once when the good Saint Peter lived in the world below and walked about it preaching just as he did, you know. Once when the good Saint Peter, वहाँ पर एक संत रहा करते थे, एक प्रीचर रहा करते थे, उनका क्या नाम था? पीटर. लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, वहाँ पर उस दुनिया में वो रहा करते थे. एंड वॉकड अबाउट इट, और वहाँ पर वो घूमा करते थे. क्या करते हुए? प्रीचिंग, मतलब अपनी जो स्टोरीज है वो सुनाते हुए वो घूमा करते थे. जस्ट एज ही डिड, यू नो. और ये सेंट्स का नॉर्मल काम होता है कि अपने घूम घूम के अपनी कहानियाँ लोगों को सुनाना. सो ही वॉज ऑल्सो वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड टेलिंग द स्टोरीज टू दोज पीपल हु वर लिविंग इन द नॉर्थलैंड. ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, वो छोटे से घर के दरवाजे पर आए. इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ, जब वो पूरे अर्थ की परिक्रमा कर रहे थे. वेयर अ लिटिल वुमन वॉज मेकिंग केक्स, वहां पर एक छोटी सी छोटे कद की महिला क्या कर रही थी? केक्स बना रही थी. एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ, और उन्हें भट्टी में सेक रही थी, रोस्ट करने का काम कर रही थी. एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग, क्या हुआ उस दिन? जिस दिन वो सेंट उनके उसके दरवाजे पर गए थे, उसके छोटे से घर के दरवाजे पर, तब वो बहुत भूखे थे. उस दिन उनका फास्ट था. फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, उनका सारा दिन बिना खाए बीत चुका था. ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स, पर उन्होंने उस लेडी से कहा कि तुम्हारे पास बहुत सारे केक्स हैं. टू गिव हिम अ सिंगल वन, तो उसमें से तुम मुझे एक केक दे दो खाने के लिए. उनको बहुत भूख लगी थी, और चूंकि वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे थे, तो उन्होंने उस लेडी से कहा कि आप मुझे एक केक खाने के लिए दे दो. शी मेड अ वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे. तो उस लेडी ने क्या किया? एक बहुत छोटा सा केक बनाया, और जैसे उसको बेकिंग के लिए रखा,
तो जब वो बेक होकर केक बाहर निकला तो उसने उस केक को उठाया और काफी देर तक देखा, और उसने सोचा कि ये केक तो बहुत बड़ा है देने के हिसाब से, अगर मुझे ये केक सेंट पीटर को देना है तब तो ये बहुत बड़ा है। Therefore she needed another and still a smaller one. फिर उसने क्या किया, आटे को गूंथ करके वापस एक और छोटा सा केक बनाया। ओके और उससे छोटा, जो उसने पहले बनाया था उससे भी छोटा उसने एक केक बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। पर जब वो बेक होकर वो भी केक बाहर निकला तो उसे क्या महसूस हुआ कि अरे यार ये केक तो उतना ही बड़ा है जितना कि पहले वाला। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. फिर उसने क्या किया, उसी लेडी ने वापस थोड़ा सा और डो लिया, छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल बेकार सा छोटा सा टुकड़ा उसने डो का उठाया, एंड रोल्ड इट फ्लैट। रोल्ड मीन्स उसको और बेला, बहुत पतला बेलती गई वो उसको, ताकि उसको केक बहुत छोटा सा बने देने के लिए, ठीक है। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat. उसको बहुत फ्लैट करती गई वो, and baked it thin as a wafer. कितना फ्लैट कर दिया उसने, जैसे जितना कि एक वेफर बिस्किट पतला होता है उतना ही उसको पतला करके उसने बेक किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट। पर जब वो भी टुकड़ा बेक होकर निकला तो उसको क्या लगा कि अरे यार ये भी बहुत बड़ा है, वो उससे भी खुद को दूर नहीं कर पा रही थी। Then, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself. जब मेरे केक्स बनाकर मैं खुद खाती हूँ तो मुझे मेरे केक कैसे महसूस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे। When I eat of them myself, जब मैं उन्हें खुद खाती हूँ तो मुझे वो केक कैसे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे। Are yet too large to give away, so she put them on the shelf. पर मुझे अगर ये किसी को देना हो तो मुझे ये केक बहुत बड़े लगते हैं, इसलिए मैं इन्हें वापस शेल्फ में रख देती हूँ। ओके। Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and fat. अब क्या हुआ, वो जब उसने ऐसा कहा कि जब मुझे केक खुद खाना हो तो मुझे छोटा लगता है, पर जब मुझे किसी को देना हो तो बहुत बड़ा महसूस होता है। इससे जो सेंट पीटर थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री, क्यों, क्योंकि वो बहुत भूखे भी थे, और चूंकि उनका फास्ट था तो उन्हें बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही थी। एंड श्योरली सच अ वुमन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और उस औरत, उस लेडी का, उस यंग लेडी का, उस लेडी जो शॉर्ट हाइटेड लेडी थी उसका किसी सेंट को इस तरीके से परेशान करना कोई अच्छी बात भी नहीं थी। फिर देन व्हाट हैपेंड, एंड ही सेड you are far too selfish to dwell in a human form. फिर उसने क्या कहा, जब उसने सेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला, एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। इतना जो कहना था कि अगर मुझे खुद खाना हो तो बहुत ही छोटा लगता है, पर जब देना हो तब बहुत बड़ा लगता है। इससे क्या हुआ, जो सेंट पीटर थे बहुत गुस्सा हो गए। क्यों, क्योंकि दैट डे ही वाज फास्टिंग एंड अगेन ही वाज फीलिंग वेरी वीकर आल्सो, सो दैट मेड सेंट वेरी एंग्री। इतना जो कहना था उस लेडी का, उससे वो सेंट बहुत ज्यादा एंग्री हो गए। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म। तुम बहुत ही बदतमीज और तुम बहुत ही सेल्फिश टाइप की लेडी हो कि तुम्हें मनुष्य का जन्म मिला है। यू आर वेरी ग्रीडी to have both food and shelter, or fire to keep you warm. What you are having, you are having food, you are having sufficient things to eat, you are having a shelter to live, and so you have become very much selfish and greedy, and fire to give you, to keep you warm. And that area, that northland was very cold, and still you are having the fire, वो भट्टी उसके यहाँ जलती थी तो इससे उसका घर कैसा रहता था, बहुत गर्म। तो ये फायर भी है तुम्हारे पास जिससे कि तुम्हारी बॉडी बहुत गर्म रहती है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गई हो। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड। अब तुम्हें मैं ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे देता हूँ, जिससे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपना बर्ड्स, अपना नेस्ट खुद ही बनाना पड़ेगा। तुम अपना घर वैसे ही बनाओगी जैसे कि बर्ड्स बनाते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग। जिस तरह मैं तुमसे बार बार फूड मांग रहा हूँ तुम मुझे नहीं दे रही हो, उसी तरीके से जिस तरह मैं बार बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम मुझे फूड नहीं दे रही हो, उसी तरीके से
तुम्हें भी बार बार खोद खोद कर अपना खाना खुद निकालना पड़ेगा। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वर्ड, और तुम कहाँ जाओगी? ऑल डे, सारा दिन तुम भटकती रहोगी। कहाँ पर? हार्ड मतलब जंगल का एरिया, जहाँ पर सिर्फ लकड़ी ही लकड़ी, ड्राई बिल्कुल सूखे जंगलों में मैं तुम्हें भेज दूंगा। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and out of the top flew a woodpecker, for she was changed into a bird. अब क्या हुआ? जो सेंट थे, जो कि बहुत एंग्री थे, उन्होंने क्या किया? उस लेडी को किस में चेंज कर दिया? एक चिमनी में। चिमनी का जो छोटा सा होल रहता है ना, उससे वो लेडी वुड पैकर बन के चिमनी के होल से ऊपर निकल गई। और वो कभी भी एक वर्ड नहीं बोल पाती थी, जो इतने ज्यादा शब्द बोल रही थी कि मुझे अगर किसी को कुछ देना हो तो बहुत छोटा लगता है, और जब मैं खाती हूँ तो बहुत, जब मुझे किसी को देना हो तो बड़ा लगता है, पर जब मैं खुद खाती हूँ तो छोटा लगता है। वो वर्ड्स कहने वाली वो लेडी बिल्कुल चुप हो गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और उस घर के ऊपर एक कौन उड़ रहा था? वुड पैकर। वुड पैकर वो बर्ड होता है जो कि वुड को ड्रेन कर करके अपना खाना को निकालता है। फॉर शी वॉज चेंज इन टू अ बर्ड, जो सेंट थे उन्होंने उसको किस में चेंज कर दिया था? एक बर्ड में चेंज कर दिया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, उस लेडी ने क्या किया था? रेड कलर की कैप पहनी हुई थी। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम, वो कैप बिल्कुल सेम की सेम ही थी उसके हेड पे। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न, और चूंकि वो उस भट्टी में से निकल कर ऊपर गई थी तो उसके क्लोथ्स कैसे हो गए थे? बर्नड हो गए थे, बिल्कुल जल गए थे। ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, और उस आग में जलने की वजह से क्लोथ्स कैसे हो गए थे? ब्लैक कलर के। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैड सीन हर इन द वुड, for where she lives in the tree till this very day, boring and boring for food। और हर बच्चे ने उस शहर के, उस एरिया के हर बच्चे ने उसको देखा था कि वो जंगल में रहती थी, और वुड पैकर बनकर वो अपना सारा दिन खाना खुद चोंच मार मार के लकड़ी में अपना सारा खाना खुद ढूंढती थी। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, वो अभी भी अपना खाना खुद ढूंढती थी। ओके, let's move towards this para. A ballad is a song narrating a story in short stanzas. Was the poem. This poem was a ballad. Okay, and what is the meaning of the ballad? Ballad is a short poem. छोटे छोटे पैराग्राफ्स में लिखी हुई एक पोएम होती है। Ballads are a part of folk culture और popular culture। एक folk story की तरह, जैसे हम folk story सुनते हैं, जातक कथाएं, वैसे ही ballads होते हैं जिनमें कि एक moral होता है। And are passed on orally from one generation to the next। A Legend of the Northland is a ballad। ये एक short story which has a moral, short poem है जिसमें एक moral है, और जो कि one generation से दूसरी generation को सुनाई जाती है। Okay, that's all in this poem। Thinking about the poem, question answers you have to do in your notebook। The answer sheets will be uploaded as early as possible।